Hello, you're watching NewsX and I'm Vaishali Kohli. Now, viewers, in a major breakthrough, a rupees 20 lakh fund trail has been traced to the three doctors, Umar, Muzammil and Shaheen. The money is suspected to have come from a Jaish handler through Hawala. On the other hand, prime accused Umar Nabi was captured on CCTV arriving in a Hyundai i20 near the HDFC Bank ATM on Biva Road, Firozpur, Jhirka in Haryana's Noor district. Meanwhile, 3 cartridges were recovered from the spot, 2 live and 1 fired, all 9mm caliber, a prohibited bore for civilians and used exclusively by security forces. In a fresh crackdown, 2 more individuals, Rizwan and Shoaib, have been detained. Shoaib, an electrician posed at Al Falah University, arranged a 10-day hideout for Omar in Hidayat Colony. Moreover, Dr. Shaheen, already in custody, has made sensational disclosures. She formally joined Jaish-e-Mohammed in 2015, remained in touch with Pakistani handlers for almost a year, and by 2016 had become a full-fledged active member of the JEM module. In custody, she has revealed that the Nepal escape plan that the module had prepared for its operatives. Sources also confirmed that Umar Nabi set up an explosive testing laboratory inside his own house near Al Falah University. Co-accused Muzammil purchased 26 quintals of NPK fertilizer on the pretext of teaching requirements. Ammonium nitrate was then extracted inside the university laboratory itself. On the other hand, the highly volatile triston triperoxide, also TATP, popularly known as Mother of Satan, was recovered from the Hyundai i20 that exploded near the Red Fort, directly linking the vehicle to the same module. And in a connected Kashmir angle, an alleged JEM honey trap ring targeting hospitals has been busted. 14 mobile phones were seized from arrested Dr. Adil. And rather, amid all of this, remember viewers, the 13 people who died in the blast near the Red Fort include an Uber driver, a bus conductor and a shopkeeper. Many of them were family men and some were the sole breadwinners in their households. And now, of course, viewers, we have Guddu Mishra, who's a brother of the deceased, Dinesh Mishra, joining us. गुड्डू, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल समय और इस मुश्किल समय में आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, हमसे बात करने का आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड्डू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके भाई जो दिनेश थे वो दिल्ली में क्या करते थे और ब्लास्ट के वक्त वो वहाँ पे किस लिए मौजूद थे? ये शादी का कार्ड वगैरह होता है मुस्लिम में, और दुकान के काम से ही कहीं गए हुए थे। वहाँ काम करने के बाद वापस रिटर्न आ रहे थे, आते हुए जी। जी गुड्डू, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं क्लियरली? जी गुड्डू, आपकी आवाज़ थोड़ी मुझे कट की आ रही है, बट आप मुझे बता रहे थे कि वो दिल्ली में उस समय पे। जी, अब मुझे आपकी आवाज़ क्लियरली आ रही है। गुड्डू, थोड़ा मुझे बताइए कि आपके भाई दिल्ली में क्या करते थे और ब्लास्ट के समय वो वहाँ पे क्यों मौजूद थे? दिल्ली में एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करते थे, वो जो शादी की कार्ड होती है उस दुकान पे, और उस दुकान से ही दुकान के काम के पर्पज से कहीं गए हुए थे। उस काम करने के बाद कश्मीर गेट गए हुए थे काम के लिए, काम करने के बाद रिटर्न आ रहे थे और रिटर्न आते समय ऐसा हुआ है, उनके साथ हादसा हुआ। जी गुड्डू, बेहद बहुत ही मैं समझ सकती हूँ कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं अभी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दिनेश की फैमिली के बारे में कुछ बताइए। क्या वो शादीशुदा थे? उनके बच्चे हैं? हाँ, शादीशुदा थे, उनके 3 बच्चे हैं। एक लड़का है बड़ा है जो 12-13 साल का है समथिंग, और 2 बेटी हैं उनके, जो एक 4 साल की है, एक 7-6 साल की है। गुड्डू, जब आपको ये खबर, जी जी बताइए। 2 बेटी है, एक लड़का है, वो सब भी छोटे थे। गुड्डू, तो जब ये इंसिडेंट हुआ इसके बाद आपको कितनी देर बाद खबर मिली कि दिनेश वहीं पे मौजूद थे? ये सब चीज तो मुझे पता चला रात को 11:15 बजे। एक्चुअली क्या है, जब इनका फोन नहीं मिलना चालू हुआ तो मैं ट्राई करना चालू कर दिया। 8:30 बजे मुझे खुद ही 8:30 बजे पता चला था कि चांदनी चौक पे विस्फोट हुआ है। मैं चांदनी चौक से थोड़ा डिस्टेंस पे रहता हूँ,
तो मैं अपने, मेरे एक भाई और मेरे से सबसे बड़े वाले भाई हैं, वो भी चांदनी चौक में रहते थे। तो उनके पास कॉल किया, उन्होंने फोन उठाया, मैंने हालचाल लिया। उसके बाद में माजिल वाले भाई है दिनेश जी मिश्रा जो थे, मेरे माजिल थे, मेरे से बड़े थे, मैं सबसे छोटा हूँ। इनके पास फोन नहीं मिला। जब फोन नहीं मिला तो हम इधर उधर ट्राई करना चालू कर दिए, कि कहीं भी फोन नहीं मिला। इनके मालिक का फोन आया मेरे पास समथिंग 8:45 बजे। वो फोन आया, मालिक ने बताया किसी काम के पर्पज से कश्मीरी गेट गए थे, वहां काम करने करके निकले थे, तब 6 बज के कुछ मिनट पे समथिंग उनसे बात हुई थी मालिक से कि मेरा काम हो गया, मैं निकल रहा हूँ। मालिक ने ऐसा बात बताया। उसके बाद में बोला कि ना हमारे ऑफिस आए हैं, ना कहीं गए हैं, ना फोन मिल रहा है। जब मालिक ने ऐसा बात बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तब मैंने ज्यादा कोशिश किया ढूंढने की, और हर जगह फोन मिलाना चालू कर दिया। जब कहीं कांटेक्ट नहीं हुआ उनका, चारों तरफ हर जगह इनके नंबर पे हर जगह ट्राई करते रहे, कहीं कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर 11:15 बजे इन्हीं का नंबर मिल गया। बार बार ट्राई करने पर इन्हीं का नंबर किसी प्रशासन ने या हॉस्पिटल वाला फोन उठाया, वो मुझे नहीं पता। 3-4 घंटे बाल गल गई, उसके बाद में उन्होंने फोन उठाया और बोला आप इमरजेंसी में आ जाइए, हॉस्पिटल में लोकनायक वाले में हॉस्पिटल में आ जाइए इमरजेंसी में। बस यही बोला गया, मैं इमरजेंसी पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद मतलब बहुत सारा प्रशासन से रिक्वेस्ट किया, अंदर हॉस्पिटल में एंट्री लिया। उसके बाद में हॉस्पिटल में एंट्री लेने के बाद अंदर इमरजेंसी में ले नहीं गया, मुझे बताया नहीं गया, मतलब दिखाया नहीं गया दिनेश भाई को, क्योंकि इनके पास कोई आधार कार्ड वगैरह नहीं था, तो लिस्ट में नाम नहीं था इनका। हेलो। जी जी बोलिए। लिस्ट में नाम नहीं था इनका, और अज्ञात में ये थे। तो मैंने बोला कि अज्ञात में 6 लोग हैं, वो बताया गया मुझे कि 6 लोग अज्ञात में। मैंने कहा उनको दिखा दीजिए, मैं चिन्हित कर लूंगा, देख लूंगा कि शायद उसी में न निकल जाए। अथक प्रयास करने के बाद मुझे नहीं दिखाया गया। 1:30 पौने 2 बजे का समथिंग एक साहब थे, मेरा डीएसपी थे या एसपी थे, कोई था वहाँ। उनसे मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत परेशान हूँ 11 बजे से इस हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ, ले गए हॉस्पिटल में। तो वहाँ जो गार्ड वगैरह होते हैं उनसे बोले कि इनको दिखाओ, वो जो 6 लोग हैं अज्ञात वाले। तब हॉस्पिटल में पता चला कि वो जितनी भी बॉडी हैं सब चली गई हैं मर्चरी। फिर मैंने मर्चरी हाउस गया, मैं और एक मेरा दोस्त, 2 लोग मर्चरी हाउस पहुंचे। तो उसमें 2-3 बॉडी 4 बॉडी मैंने चिन्हित कराएगा, उसी में मेरे भाई का भी बॉडी निकल आया है। तब मुझे 2 बजे के समथिंग मुझे पता चला कि मेरा भाई डेथ ही कर गया। उससे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा भाई सही दवा हो रहा है, इलाज हो रहा है, चोटिल है या डेथ है क्या। मुझे डेथ के बारे में 2 बजे पता चला कि सीधा मुझे बॉडी ही मिला जमीन में। गुड्डू, क्या आपको सरकार की तरफ से कोई हेल्प ऑफर हुई है, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुई है। दिल्ली सरकार ने शायद 10 लाख रुपए की घोषणा किया है। तो वहाँ के जो एसडीएम साहब हैं उनके ऑफिस से मेरे पास आया था मैसेज वगैरह सारा, तो मैं जो डॉक्यूमेंट मांगे थे मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया है उनको। बाकी अभी ऐसा कोई सहायता नहीं मिला है। तो गुड्डू, ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगी हैं, अब ये क्या कह रहे हैं, कितने दिन में आपको वो वापस आपके उनके, पास आपसे जुड़ेंगे, कुछ बताया उन्होंने? हाँ कल भी उनका फोन आया था, तो ये सब पूछ रहे थे गाड़ी वाड़ी के लिए, एम्बुलेंस वगैरह वाले के लिए पैसा तो नहीं लिया। तो मैंने बोला नहीं पैसा नहीं लिया, फ्री में आया था। तो उन्होंने बोला कि वो मैंने सारा प्रोसेस आपका कर दिया, पेपर वर्क, 2-4 दिन में 2-3 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा बोला गया था मुझे एसडीएम ऑफिस से। गुड्डू, क्या आप दोनों सिर्फ दो भाई हैं या आपके और भी भाई बहन हैं? नहीं नहीं, मैं 3 भाई 1 बहन है। मैं तीनों भाई दिल्ली में रहते थे। जो सबसे बड़े वाले भाई हैं वो भी चांदनी चौक में ही रहते थे। मैं सबसे छोटा हूँ, ये बीच वाले थे, जो दिनेश मिश्रा थे, ये बीच में वाले थे, माजी भाई थे मेरे। ये भी चांदनी चौक में रहते थे। और गुड्डू, कहाँ से हैं आप, कौन से शहर से हैं? मैं उत्तर प्रदेश, जिला श्रावस्ती लगता है, जी। थाना इकोना। गुड्डू, अब ये तो मैं तो इमेजिन कर सकती हूँ कि उनकी जो वाइफ है उन पे क्या गुजर रही होगी, पर मैं फिर भी आपसे पूछना चाहती हूँ, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी जो है वो कैसी हैं, अभी उनकी क्या हालत है? अब वो तो सब कोई घर वाले, पूरे घर वाले परेशान है। मम्मी, हमारे भी मम्मी पापा हैं, सब कोई घर पे सब कोई परेशान रहता है। लेकिन हम ही जो है समझाते रहते हैं, अपना जो है दिल मजबूत करके समझाते हैं। क्या करें, अब हम ही जो है देखने वाले हैं, घर परिवार नहीं देखेंगे। अगर हम ही परेशान हो जाएंगे तो और तो सब परेशान है ही है। जी बिल्कुल गुड्डू, ये तो बेहद ही मुश्किल समय है, और आपसे बात करके ये भी लग रहा है कि ये जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें इसका कोई भी शिकार हो सकता है। मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और जी जी, कोई भी हो ये सकता है। जी,
जी, ये चीज़ें जो है रुकनी चाहिए। और हम तो सरकार से यही गुहार लगा सकते हैं कि कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से ये चीज़ें रुकें। पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जब हॉस्पिटल गए तो और भी वहाँ पे शव होंगे, वहाँ पे वो क्या जी। माहौल था उस समय पे? जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल में तो बाहर बहुत सारे भीड़ लगी थी, जनता भी थी और न्यूज वाले बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ हॉस्पिटल में पहले घुसने ही नहीं दे रहे थे। मैंने फिर न्यूज वालों को बुलाया और मैंने डिबेट करना किया, चालू किया, मतलब लोगों का, न्यूज वाले मेरे से बात पूछने लगे, तो कुछ प्रशासन लोग मुझे अंदर ले गए हॉस्पिटल में। बाकी बहुत सारी जनता बाहर थी, फिर भी वहां थोड़ी कुछ पता चला। फिर मैं मर्चरी में 2 बजे मुझे बॉडी मिला है। वहाँ मर्चरी में तो बहुत सारी लाशें थी, अब मैंने काउंट नहीं किया कितने थी, लेकिन मुझे 4-5 लाश दिखाने के बाद ही, 4-5 बॉडी पहचानने के बाद मुझे मेरा भाई मिला। गुड्डू, ये जब किसी के साथ होता है तो इसमें दुख तो बहुत होता है, पर एक गुस्सा भी होता है, क्योंकि ऐसा ये जो आतंकवादी ये चीज़ें करते हैं, आपको अगर एक चीज़ कहनी हो उनको जिनकी वजह से आपके भाई गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उनको बस जो भी है 2-4 दिन रखिए पूछताछ करके, उसके बाद में जो भी मिले उनको चौराहों पे काट रखिए। कुछ भी नहीं करना चाहिए, चौराहे पे खड़े करके गोली मारो, चाहे हाथ पैर काटो उनके। और ये सब बंद होना चाहिए। सरकार को इससे कड़ी से कड़ी, मतलब इन लोगों के साथ कार्रवाई करो कि ये, जैसे हमारे भाई के साथ दुर्घटना घटी है, हम लोग पूरे परिवार परेशान है, ऐसे किसी और के साथ ना घटे। मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा। जी गुड्डू, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप आज इस मुश्किल समय में न्यूज़ एक्स के साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।